میں دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاقی سرکار نے چھٹی مردم اور گھر شماری 1 مارچ سے کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزارت ترقی و منصوبہ بندی اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاقی سرکار نے چھٹی مردم شماری اور گھر شماری 1 مارچ سے کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزارت ترقی و منصوبہ بندی اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں مردم اور گھر شماری کا آغاز 1 جنوری کو ہی ہوگا۔ وفاقی وزارت ترقی و منصوبہ بندی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مردم و گھر شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں گی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں اگلے انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے۔ ایم کیو ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے وفاقی سرکار نے چھٹی مردم اور گھر شماری 1 مارچ سے کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا مزید نوٹیفیکیشن میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے چھٹی جو مردم شماری ہوئی تھی جس پر تمام سیاسی جماعتیں بشمول ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے تحفظات تھے، جس کے تحت حلقہ بندیاں ہوئی تھی ان پر ان کے تحفظات تھے، لیکن وفاقی سرکار نے اس وقت جو ہے نئی مردم و گھر شماری کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ ترقی و منصوبہ بندی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے تحت نئی مردم و گھر شماری 1 مارچ 2023 سے شروع ہوگی۔ اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے تحت یہ مردم شماری ہوگی، مردم و گھر شماری ہوگی، جس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوگی، اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد جو ہے اگلے جو نئے انتخابات ہوں گے وہ ان نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے، کیونکہ جو چھٹی مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندیاں کی گئی تھی ان پر ایم کیو ایم پاکستان کے سخت تحفظات تھے۔ اس کے تحت جو ہے نئی حلقہ بندیوں کے بعد کراچی سمیت پورے ملک میں جو انتخابات ہوں گے وہ اب جو نئے 7ویں مردم شماری و گھر شماری کے تحت جو حلقہ بندیاں بنائی جائیں گی ان کے تحت ہی کی جائیں گی، کیونکہ اس وقت ان تمام تر سیاسی جماعتوں کے خدشات ختم کرنے کے لیے وفاقی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور 1 مارچ سے باضابطہ طور پر مردم و گھر شماری کا آغاز ہوگا، جس کے بعد حلقہ بندیاں کر دی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں بھی ادویات غائب ہونے لگی ہیں۔ وائس چیئرمین میڈیسن مارکیٹ نے کمپنیوں کی بندش سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ کراچی نئے بحران کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ کراچی نئے بحران کی جانب بڑھنے لگا۔ ادویات کا بحران سنگین ہو گیا، ہول سیل مارکیٹ بھی لپیٹ میں آ گئی۔ وائس چیئرمین میڈیسن مارکیٹ عامر ملک کہتے ہیں کہ بینک ایل سیز نہیں کھول رہے، امپورٹرز کے بینک میں مسلسل جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے سے 700 میڈیسن کمپنیاں بند ہونے کی خدشات ہیں، اور بینکوں میں مسلسل اپنا امپورٹر کے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بینک جو بھی ہے کہ بینک کہتا ہے جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اس وجہ سے را میٹیریل آ نہیں رہا، اور تقریباً یہ پوزیشن ہے کہ کمپنیاں بالکل بند ہونے کے مقام پہ آ چکی ہیں۔ ہفتہ یا 10 دن کے اندر میں سمجھتا ہوں 700 سے 800 کمپنیاں جو کہ جان لیوا اپنا کیا کہتے ہیں کہ لائف سیونگ جو اپنا ڈرگ جو ہے وہ بنا رہی ہیں، اور وہ بھی بند ہونے کے اوپر ہیں۔ عامر ملک نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کمپنیاں بند ہوں گی تو میڈیسن مارکیٹ بھی بند ہو جائے گی۔ اس وقت بھی ادویات کی کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کف سیرپ 40 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ چیز طے نہیں ہوگی کہ یہ ہمیں پراپر میڈیسن یا کف سیرپ یا سرجیکل کے آلات خاص طور پہ جو کہ ٹوٹل امپورٹ ہوتے ہیں وہ بالکل شارٹ ہو چکے ہیں یہ اس وقت، اور شارٹ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے ریٹوں پہ منمانی کر کے بیچتے ہیں۔ حکومتی عدم توجہی کے سبب شہر کی میڈیکل سٹورز پر جسم کے درد، شوگر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ کیمرہ مین قیوم کے ہمراہ کاوش میمن، سنٹی ون۔ ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن آف پاکستان نے 28 جنوری سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ مسائل حل نہ کرنے پر وفاقی وزیر پیٹرولیم کو مستعفی ہونے کا مشورہ بھی دے دیا۔ ایل پی جی انڈسٹری کی ہڑتال کا خطرہ۔ کراچی پریس کلب میں ایل پی جی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین عرفان کھوکھر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایل پی جی انڈسٹری میں لوٹ مار کرنے والے آ گئے ہیں۔ حکومت نے جنوری کے لیے ایل پی جی کی قیمت 204 روپے مقرر کی ہے، لیکن فی کلو ایل پی جی کی قیمت 300 روپے تک پہنچا دی گئی ہے۔ ایس ایس جی سی اور دیگر ادارے لوٹ مار میں بازی لے گئے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ گورنمنٹ کی قیمت اس وقت جو جنوری کے لیے ہے
वो 204 पे है। आज अफसोस से कहना पड़ रहा है मुल्क भर में गैस 300 रुपये किलो पे पहुंच गई है। आज मैं कह रहा हूँ सरकारी इदारे बाजी ले गए, सरकारी इदारे लूट मार में SAGC बाजी ले गया। इरफान खोकर और दीगर बोले कि मुल्क में गैस की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। पसमानदा पहाड़ी इलाकों में फी किलो LPG 350 रुपए, गिलगित बल्तिस्तान में LPG 400 रुपए फी किलो तक पहुँचने का खदशा है। मुल्क में यौमिया 5000 टन LPG फरोख्त हो रही है। पहाड़ी इलाकों में गैस जो है 350 रुपए किलो है और गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा वगैरह जो इलाके हैं वहाँ पे 400 रुपए किलो पहुंच गई। गैस बिल्कुल नायाब हो चुकी है। इस वक्त आपकी मुल्क की खपत जो है वो 4500 टन से 5000 टन क्रॉस कर गई है। 4500 टन से 5000 टन तक क्रॉस कर गई है और हमें इंपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर लोकल प्रोडक्शन अमल में आ जाती है 30-40 हज़ार टन और गर्मियों में बहुत या सर्दियों में भी होती है तो लोकल प्रोडक्शन देखिए जाम शुरू हो, ये बाकी कोई प्रोडक्शन पाकिस्तान की लोकल पैदावार बढ़नी चाहिए। मौजूदा सूरत में डॉलर की किल्लत, बदतरीन माशी बहरान में माफिया से छुटकारे और खुद इन्हिसारी की इक़दामात इंतहाई हो गए हैं। कैमरामैन गुलफाम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के बेशतर इलाकों की तरह शाहराह कायदीन खुदादाद कॉलोनी भी गैस के बहरान का शिकार है, जिसके बायस खवातीन को खाना बनाने और सर्दी में पानी गर्म करने के लिए इंतजार में घंटों गुजारना पड़ते हैं। मजीद बात करेंगे हमना निसार से। जी बिल्कुल जी, कराची के बेशतर इलाके औरंगी, बल्दिया, मलीर की तरह खुदादाद कॉलोनी भी के रहायशी भी गैस से महरूम हैं। आज हम एक घर में खुदादाद कॉलोनी के एक घर में मौजूद हैं। यहाँ की खातून से बात करेंगे कि उनके गैस की महरूमी की वजह से उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं। जी आप बताइए, शमीमा मौजूद है हमारे साथ, बताइएगा कि आपको गैस के जो बहरान चल रहा है, जो गैस आ ही नहीं रहा है, कितने टाइम से गैस नहीं आता है और उसको क्या क्या परेशानियों का सामना आप बताएंगी? जी 2-3 महीने से गैस नहीं आ रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं अकेली होती हूँ, बीमार से मारूँ, बार बार उतर के ऊपर नीचे नहीं हो सकती। घर के में चाय बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेरे को मुश्किल होती है। बीमार हूँ तो कम से कम गैस का तो आप इंतज़ाम करें, और कुछ नहीं तो हमें गैस चाहिए। हमें कराची में सब सुकून चाहिए, सब आराम चाहिए। हमारे वजह से वज़ीर आज़म कोई भी बन जाए, हमें कोई मसला नहीं, सब इंसान जैसे होते हैं। हमें किसी से कोई नहीं, हमें सब गैस चाहिए, आराम चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि गैस के ना होने की वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खाने को लेके, पानी गर्म करने के लिए, इस हवाले से बताइएगा आप। जी पानी गर्म नहीं होता है, नहा नहीं सकते हम, ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता हमसे, हम परेशान रहते हैं, कैसे जाएँ। और बाबा किसी घर में पकाने नहीं जा सकते, यहाँ है ही नहीं गैस, किसके घर में जाए, सब परेशान है, पूरा एरिया परेशान है यहाँ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। हमारे साथ खुदादाद कॉलोनी के इलाका मकीन मौजूद थे। उन्होंने यही कहा कि गैस ना होने की वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना है, खाना बनाने में भी देरी हो जाती है, गर्म पानी नहीं कर, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जी CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने शहर भर में बिजली मामूल पर आने का दावा किया है। वीडियो पैगाम में मोनस अलवी ने कहा है कि तमाम रिहायशी, कमर्शल और सनती सार्फिन को ज़रूरत के मुताबिक बिजली फराहम कर रहे हैं। इस वक्त पूरा कराची का सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो चुका है और हम तमाम रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्री को ज़रूरत के मुताबिक बिजली सप्लाई कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा सबसे पहले तो अल्लाह ताला का, और उसके बाद मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब का, जिन्होंने बड़ा एक्टिव इंटरेस्ट लिया इन दिस रिस्टोरेशन एफर्ट, और वो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ टच में भी थे। और जैसे ही हमारा इंटरकनेक्शन NTDC के साथ दोबारा से जुड़ा, उन्होंने फ़ौरन हमको मेगावाट सप्लाई करना शुरू कर दिए। और एट द एंड ऑफ द डे हमारी टीम, जिन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अनथक मेहनत की कल सुबह से लेकर के आज सुबह तक तकरीबन इस सिस्टम को रिवाइव करने में, और यकीनन मेजर रिस्टोरेशन तो जब ही हुई जब NTDC से हमको मेगावाट शुरू हुए, मगर हमारी मशीनें जो कि सर्दी के मौसम में उनको मेंटेन किया जाता है तो वो ज़रा अवेलेबिलिटी उनकी कम होती है ताकि वो समर में पूरी तरह चल सकें। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम हमारा उनसे मुनक़ता हुआ था और कराची में बिजली गई थी, हमने अपनी मशीनों को चलाना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 3-4 बजे के करीब तकरीबन 450-500 मेगावाट शहर को सप्लाई कर रहे थे और बहुत बड़ा हिस्सा बिजली इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम पे। मैं इस वीडियो के ज़रिए जो हमारे कस्टमर्स हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन ये पेनफुल होता है, मगर सब लोगों ने बड़ा पेशेंस दिखाया और ये जो यकीनन अभी हमें शायद इसके लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है, मगर मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस मुझे हमारी हेल्प की, और चाहे वो काम करके, चाहे वो अपना सब्र दिखा के। थैंक यू वेरी। शहर कायद के मुतादिद इलाकों में डकैतों का राज बरकरार है और कराची की सड़कों से शाहीन फोर्स गायब हो गई है।
अवाम पुलिस पेट्रोलिंग ना होने से डकैती का निशाना बन रही है। बात करेंगे नुमान कियानी से। जी नुमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पीपल्स चौरंगी पर मौजूद हैं। ये कराची की मरकजी चौरंगी है। एक तरफ रास्ता मज़ार कायद को जाता है, जबकि एक तरफ जो है वो इस्लामिया कॉलेज वाला रूट है, जबकि तीसरी तरफ जो है वो आई चंडीगढ़ की तरफ जो है ये रास्ता जाता है। मगर हैरानकुन बात ये है कि जिस तरह कराची शहर के अंदर सर्दी की लहर जो है वो बढ़ रही है, उसी तरह सड़कों पर जो है तैनात होने वाली शाहीन फोर्स और पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स जो है वो हमें गायब नज़र आती है। एक हफ्ता कबल जो है इसी रूट पर जो है वो छीना झपटी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए मोटरसाइकिल सवारों के साथ, मगर उसके बावजूद जो मुताल्लिका अफसरान हैं, जो थानों के पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान हैं, उनकी जानिब से अभी तक हमें किसी किस्म की जो है पुलिस पेट्रोलिंग सड़कों पर नज़र नहीं आई। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो स्ट्रीट क्राइम की इस चौरंगी के अतराफ़ है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का ना होने का बायस है, जिसकी वजह से जो मुल्ज़िमान हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनका आसान हदफ जो होता है मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जिनको वो लूट मार कर निशाना बनाते हैं। जी। सिंध सरकार ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात वापस ले लिए। तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात सेक्रेटरी बल्दियात के सपुर्द कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। तकर्रुर तबादलों के इख्तियारात सेक्रेटरी बल्दियात के सपुर्द किए गए हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। इस वक्त महकमा बल्दियात के अंदर सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के माबिन जो है खास तौर पर अफसरान के तकर्रुर तबादलों के मामले पर जो है तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और इस वक्त सिंध सरकार ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी से तकर्रुर तबादलों, मुअत्तली या उनके जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो वापस लेकर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड यानी बल्दियात के हवाले कर दिए। और सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके ये इख्तियारात जो महकमा बल्दियात की R&I विंग है उनके सुपर्द करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और कहा गया है कि फौरी तौर पर R&I विंग इन तकर्रुर तबादलों के इख्तियार अपने पास ले और जो है आज से इन तकर्रुर तबादले जो किए जाएंगे वो R&I विंग करेगी। इससे कबल जो खासतौर पर सेक्रेटरी जो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी हैं उन पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इस वक्त सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत बहाल हुए हैं, लेकिन उनकी जानब से मुसलसल गैर कानूनी तरीके से तकर्रुर तबादले किए गए, जिस पर सेक्रेटरी नजम शाह ने वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह को शिकायत की, जिसके बाद सिंध सरकार ने इनसे इख्तियार वापस लेकर सेक्रेटरी बल्दियात के सुपर्द किए। और सेक्रेटरी बल्दियात ने मुकम्मल सतह पर R&I विंग के हवाले करके इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आज के बाद जो तकर्रुर तबादले होंगे या मुअत्तली या दीगर जो कार्रवाइयाँ होंगी वो R&I विंग जो महकमा बल्दियात के वो करेगी, जिसकी सरप्राइज जो है सुपरवाइज जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात खुद नजम शाह खुद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि सहाफ़त में फोटोग्राफर्स की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने प्रेस क्लब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर्स के तहत 3 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश बाउनवान कराची से कराची की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। तस्वीरी नुमाइश में कराची शहर की समाजी और माशी ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी की गई, जबकि तस्वीर के ज़रिए शहर के मुख्तलिफ मसाइल को बड़ी महारत से उजागर भी किया गया। इस मौका पर गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़ोटो जर्नलिस्ट बड़ी बहादुरी और जान फशानी से अपनी पेशावराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर सिंध ने नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले फ़ोटोग्राफर्स में असनाद भी तकसीम की। इस मौका पर PFUJ के सदर GM जमाली, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शेब खान, प्रेपेप के सदर अब्बासी मोहम्मद मेहदी और जनरल सेक्रेटरी जबील बेग भी मौजूद थे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद यूसिस पर वोटों की दोबारा गिनती शुरू। 6 के नताइज रोक लिए गए। पीपल्स पार्टी 91 और जमात इस्लामी 85 यूसीस पर आ गई है, जबकि PTI 42 यूसीस पर कामयाबी से हमकिनार हुई। इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात की नई दर्जाबंदी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 235 यूसीस पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 229 यूसीस के नताइज पर नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 91 यूसीस पर PP अब भी सरे फहरिस्त है। जमात इस्लामी 85 पर कामयाब होकर दूसरे नंबर पर, PTI 42 यूसीस के साथ तीसरे नंबर
नंबर पर, नून लीग 7, JUI 2, TLP 1 और एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। जमात इस्लामी जिला वस्ती में 37, जिला शर्की में 19 और जिला कोरंगी में 21 यूसीस के साथ पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का जिला मलीर में 20, जिला जनूबी में 15 और जिला केमाड़ी में 26 यूसीस के साथ पहला नंबर है। जिला गरबी में पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान 9 यूसीस के साथ टाई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जाम पर 6 यूनियन कमेटीज के नताइज रोक दिए हैं, जबकि उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस 11 यूसीस पर इंतखाबात होंगे। इक़्तिदार अनवर, कराची। मुत्तहिदा पाकिस्तान का मसाइल के हल के लिए सड़क पर आने का फैसला। राबता कमेटी कल जलसे और एहतजाज की हतमी तारीखों का ऐलान करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ में इजलास, मुतनाज़ा हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात की बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। MKM पाकिस्तान के तंजीमी ढांचे को मज़ीद मजबूत करने पर भी गुफ्तगू की गई। उधर MKM का बंद सियासी दफातर की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के है। MKM ने गवर्नर सिंध को भी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए हुकूमत के इक़दामात। चीन से मज़ीद 130 वैगन्स मार्च में कराची पहुँचेंगी। 70 पहले ही सिटी स्टेशन पर मौजूद हैं। नई वैगन से रेलवे आमदन में सालाना 1.5 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मुआहदे के तहत 620 वैगन्स पाकिस्तान में बनेंगी। शहर कायद में सर्द मौसम में फूलों की मुनफरिद नुमाइश का आगाज़ हो गया। हुक्काम कहते हैं कि फूलों की नुमाइश का मकसद आवाम को कुदरती माहौल के करीब लाना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया के माहौल दोस्त इकदामात जारी। नॉर्थ कराची के बी अम्मा पार्क में मैरी गोल्ड ने अपने रंग बिखेर दिए। 5 रोजा मैरी गोल्ड फेस्टिवल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल ताहा सलीम ने नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा, ये अवाम को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने का सिलसिला है। बल्दिया वस्ती में रवां बरस फूलों की दूसरी नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। तो इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये इस अपने एक फूल में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अलग अलग तरह के कलर हैं, जाफरी है, और उसके अलावा ये वो फूल है गेंदे का जो हमारी सकाफत से भी लिंक करता है, हमारे कल्चर से भी लिंक करता है और नेचुरली हमारे पास पाया जाता है। फेस्टिवल में आने वाले शहरियों ने इवेंट को मुनफरिद और बेहतरीन करार दिया। बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट लोकेशन है। फ्लावर्स तो वैसे घरों में भी होते हैं और भी जगह होते हैं पार्क में नॉर्मली, लेकिन ये है कि इसकी डेकोरेशन वगैरह जो है, इसके कलर जो है 1 कलर पे डेकोरेट किया, येलो पे, यानी कि सारे मैरीगोल्ड फ्लावर हैं, उनकी सारी कैटेगरीज हैं और इससे जो है आबो हवा एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और यकीन नहीं आ रहा है हमारे ही एरिया का पार्क है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से हम लोग यहाँ हैं। पहले बहुत अच्छा था लेकिन बीच में इसका हालत बहुत साजगार हो गई थी ना। बल्दिया वस्ती के महकमा बागात के अफसरान ने नुमाइश को डिपार्टमेंट की मुश्तरका काविश करार दिया। 1.5 से 2 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और इसकी हम तैयारी कर रहे थे और तकरीबन सब सारी जो है हमारे जो जोन के जो मालीज हैं और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जितने सब ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। DMC की थीम ये है, DMC का मानना ये है कि लोगों को नेचर के करीब लाया जाए। उस सिलसिले का ये तसलसल है कि फ्लावर शो के लोग आएँ, फूल पौधे देखें, इससे महसूस हों और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन फ्यूचर इसका तसलसल बरकरार रहेगा। मैरी गोल्ड फेस्टिवल में गेंदे के 12 रंगों के 50,000 पौधे रखे गए हैं। अवाम के लिए फूड कोर्ट और प्ले एरिया भी नुमाइश का हिस्सा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के साहिल समुंदर को साफ रखने के लिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की जानिब से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया। सफाई मुहिम में तलबा के साथ असातिज़ा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साहिल को साफ सुथरा रखें, माहौल बेहतर बनाएं। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी भी साहिल की सफाई के लिए मैदान में आ गई। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद तलबा में सफाई से मुताल्लिक शऊर उजागर करना भी था, ताकि वो अपने घर, मोहल्ले, इलाके और फिर मुल्क में साफ माहौल के लिए किरदार अदा कर सकें। सीवीयू पर बीच क्लीनिंग ड्राइव सुबह 9 से शुरू होकर 12 बजे तक इख्तिताम पजीर हुई मुहिम में बच्चों के साथ साथ असातिज़ा ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी टीचर ताहिरा तारिक ने कहा कि जामा के तलबा से ज्यादा स्कूल के बच्चों में सफाई से मुतालिक आगाही देना जरूरी है। और थैंक यू वेरी मच मीडिया पार्टनर C21। मेरा ख्याल है अगर हम सब मिलकर इसी तरह से स्टूडेंट्स को, ये एज है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीच क्लीनिंग करने आते हैं वो मैच्योर हैं, उनको पता है कि हम अगर
यहाँ पर शॉपर या रैपर्स चीज़ें फेंकेंगे तो इस तरह से सी एनिमल्स को क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनको इस वक्त गाइडलाइन देनी है। क्लीनिंग ड्राइव में शरीक स्कूल हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि बच्चों को इस ड्राइव का हिस्सा बनाने का मकसद उन्हें सफाई की आगाही देने के साथ साथ आबी हयात की अहमियत से भी रोशनास कराना था। ड्राइव का मकसद ये है कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म करें। हम जो हमारे सबसे मेन जो है वो हमने सी व्यू से स्टार्ट लिया है। थैंक यू सो मच ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को इस बात की तरफ जो है राग़िब किया और ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। इसी बच्चे भी क्लीनिंग ड्राइव में शिरकत और माहौल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर खुश नजर आए। ये टॉपिक बोलना चाहती हूँ कि हमें ये जो समंदर जो है हमें इन्हें साफ़ रखना चाहिए और हमें अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। हमें समंदर साफ रखना चाहिए और अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। शुक्रिया। डायरेक्टर इस्माइल इंडस्ट्री आरिफ हुसैन का कहना था कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक छोटा सा कदम उठाया है। उम्मीद है कि ये ड्राइव माहौल में बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन हसनैन के साथ रूहा फातिमा, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारी कर ली है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब दे मिठान में सरकारी अमलाक पर तजावुजात बनाने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कब्जा माफिया हुकूमत के निशाने पर डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अली आबड़ो की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अफसरान ने नॉर्दर्न बाईपास के करीब देई मठान में सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ाने के लिए कमर कस ली। मुख्तार कार सब डिवीजन बल्दिया टाउन अजीज भट्टी और तपादार नदीम ने सरकारी जमीन पर बनाई गई बाउंड्रीज बनाने वालों को नोटिस तकसीम कर दिए। नोटिस की मुद्दत होती है 3 दिन की। 3 दिन के अंदर वो अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं फिर सेक्शन 3 का नोटिस दिया जाता है। आर्डर होता है कि आपके जो हैं तजराबात, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना क्लास है, तो मुस्मार किए जाते। मुख्तार कार सब डिवीजन बल्दिया टाउन अजीज भट्टी कहते हैं देई मठान की सैकड़ों एकड़ अराजी पहले भी कब्जा माफिया से वगजार कराई जा चुकी है। इस पर दोबारा तामीरात हो गई हैं। कार्रवाई में उन्हें भी गिराया जाएगा। ये पूरी इलीगल है। पहले भी हमने ये डिमॉलिश किए थे। अभी दोबारा ये बाउंड्रियाँ वगैरह जो हैं इन लोगों ने कुछ दोबारा करने की शुरुआत की है। लिहाजा तपेदार साहब ने रिपोर्ट की थी, उसके बिना पर मैंने खुद विजिट किया है तो कुछ लोग बाउंड्रियाँ वगैरह लगा रहे हैं, इनको नोटिस भी सर्विस किया है। नॉर्दर्न बाईपास से मुतसिल इलाकों में लैंड माफिया की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयों से कब्जों का सिलसिला कम होता जा रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, C21। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स अदनान पराचा का कहना है कि 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद कतर जाने वालों की मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत इस मामले का फौरी नोटिस ले, वरना कतर के लिए नौकरी का कोटा किसी और मुल्क को मुंतकिल हो जाने का खदशा है। कतर नौकरी के लिए जाने वालों की परेशानी मजीद बढ़ गई। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने में शदीद दुश्वारी के बाइस ओवरसीज एम्प्लॉय प्रमोटर सरापा एहतजाज बन गए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के अदनान पराचा ने बताया कि इस्लामाबाद में QVC जरीस के दफातर के सामने कतर भेजने वालों प्रमोटर्स की बड़ी तादाद जमा हो गई है। 1.5 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया जा रहा। इस साल 2022 में हमारे जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें भी हम टोटल इस साल में 58,000 बंदा भेज चुके हैं, जो कि हम 1.5 से 2 लाख बंदा भेज सकते थे। इसकी मेन वजह QVC है, कतर वीज़ा सेंटर है, जो कि जहरीस के अंडर काम करता है। यहाँ पे करप्शन का बाज़ार गर्म है। इनके इंटरनल जो लोग हैं वो मेडिकल्स के नाम पे हज़ारों रुपए गरीब आवाम से लूट रहे हैं और आवाम को रिपीट मेडिकल और इन चीज़ों पे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमने इसका एहतजाज कॉल किया इस्लामाबाद कतर वीज़ा सेंटर पे। अदनान पराचा ने कहा कि आम तौर पर अपॉइंटमेंट और टैक्स फ्री होता है और कतर की कंपनी QVC को $137 फी फर्द अदा करती है। मेडिकल अपॉइंटमेंट के नाम पर 15 से 20 हज़ार रुपए वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्री मेडिकल नहीं हो पा रहा। अर्जेंट मेडिकल के नाम पे 7,500 रुपये चार्ज किया जा रहा है और मेडिकल अर्जेंट अपॉइंटमेंट के नाम पे उससे ऊपर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये लिया जा रहा है और जो लोग पैसे पे नहीं करते उनके मेडिकल रिपीट कर दिए जाते हैं। अदनान पराचा ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कतर जाने वालों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाक बहरिया, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट ने शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई करते हुए 15 अरब रुपए की मुनशियात बरामद कर ली।
कार्रवाई के दौरान 12 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी इदारों का गहरे समंदर में एक्शन। शुमाली बहरे अरब में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन के दौरान 12 स्मगलर्स गिरफ्तार स्मगलर्स से 15 अरब से जायद मालियत की 1450 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। बरामद की गई मंशियात में 586 किलो आइस क्रिस्टल और 864 किलो हेरोइन शामिल है। डिप्टी डीजी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मंशियात यूरोपियन ममालिक में महंगे दामों बिकती है। जो रॉ ड्रग्स होती हैं उसके अंदर हैश आती है जिसको आप चर्स कहते हैं, और कुछ जो क्रिस्टल जो होती है सिंथेटिक ड्रग्स में आती है, तो बाकायदा फैक्ट्रीज़ में बनती है और इसके जो यूज़र्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं हैश के और हीरोइन के जो यूज़र्स होते हैं। तो जनरली ये यूथ यूज़ कर रही है आजकल, और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका ये बहुत महंगी भी बिकती है वहाँ पे। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर कस्टम अली रजा सुपरा बोले, कोशिश होती है हमारे मुल्क का पानी किसी भी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल ना हो, कि हमारे मुल्क का पानी इस्तेमाल ना हो, हमारे मुल्क के वाटर्स इस्तेमाल ना हो इस इलीगल एक्टिविटी के लिए। अब गॉड फॉरबिड ये चीज़ इंटरनेशनल वाटर्स में कहीं पकड़ी जाती तो आप सोचें कि उसकी जो ओरिजिनेशन है वो हमारे यहाँ से हुई। ऑफ कोर्स यहाँ से हुई ना, हमने भी तो यहीं से पकड़ा। तो हमारा अभी जो एम्बिट चल रहा है, हमारा वी आर ट्राइंग कि किसी तरीके हम इतनी डेटरेंस कर दें कि वो ये रूट ही छोड़ दें। गिरफ्तार स्मगलर्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आइंदा चंद रोज में इस स्मगलिंग के मास्टरमाइंड्स की भी सामने आने का इम्कान है। कैमरामैन इब्राहिम अली के हमरा शोएब मुख्तार, सिटी 21। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 240.75 रुपए का हो गया। यूरो 1.50 रुपए महंगा होकर 275 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपए इजाफे से 313 रुपए का हो गया है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा है कि तमाम मेंबरान ने मुस्तफ़िक़ा फैसला किया है कि ओपन मार्केट में डॉलर पर लगाया जाने वाला कैप कल से ख़त्म कर दिया जाएगा। ओपन मार्केट में डॉलर के बढ़ते रेट को रोकने के लिए डॉलर को फिक्स किया गया, जिससे कैप कहते हैं। इस फैसले से ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को डॉलर मिलने लगा। कंपनी एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा कि तमाम मेंबरान ने मुतफ़क़ा तौर पर डॉलर की कीमत पर कैप खत्म करने का फैसला किया। मलिक बोस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर के बढ़ते रेट को रोकने के लिए डॉलर को फिक्स किया गया, जिसे कैप कहते हैं। मलिक बोस्तान ने ये भी मान लिया कि कैप लगाने से डॉलर का रेट कम होने के बजाय उल्टा बढ़ गया और ब्लैक मार्केट इसकी वजह से परवान चढ़ी। ये मुतफ़क़ा तौर पर मुतालबा किया है एसोसिएशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है और ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। ये भी कहा कि मार्केट में डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा। मलिक बोस्तान ने साहब कहा कि जिन लोगों को डॉलर की जरूरत होती थी वो ना मिलने के सबब ब्लैक मार्केट में जा रहे थे। ये भी कहा कि मार्केट में डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट खत्म हो जाएगी। इस पर स्टेट बैंक को भी ब्रीफिंग देंगे। जिन लोगों को डॉलर की ज़रूरत होती थी, उन्होंने सफ़र करना था हेल्थ के लिए, तालीम के लिए और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, जो कोई बाहर जा रहे होते हैं तो वो उनको मिल नहीं रहा था, वो मजबूरों से ब्लैक मार्केट में जा रहे थे, जिसकी वजह से पैनिक था मार्केट में और हुकूमत की, स्टेट बैंक की, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की बड़ी बदनामी हो रही थी। मलिक बोस्तान ने कहा कि एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर कहीं से नहीं मिल रहा और तसलाते ज़र का जो भी डॉलर आ रहा है वो 100% स्टेट बैंक को दे रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर सेल खत्म हो गई। इंटर बैंक और फ्री मार्केट में जब रेट का फर्क खत्म हो जाएगा तो तसलाते ज़र भी बढ़ेगी। 3 महीने से बैरून मुल्क से आने वाले तरसलाते ज़र 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर रह गई है, जिसकी बुनियादी वजह से 30 रुपए के फर्क के बायस हवाला करने वाले डॉलर बार ही खरीद रहे हैं। सीनियर नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है कि ताजिर पोर्ट पर कंटेनर्स फंसने के बायस बेहाल हो चुके हैं। $800 का माल भी पोर्ट पर फंसा हुआ है, जो ताजरों की तबाही और परेशानी का बायस बन रहा है। हबीब खान की रिपोर्ट। पोर्ट पर कंटेनर्स की क्लियरेंस न होने से ताजिरों की परेशानियां कम न हो सकीं।
पोर्ट पर फंसे माल के हवाले से नित नई मुश्किलात जन्म लेने लगीं। सीनियर नायब सदर FPCCI शब्बीर मंशा का कहना है पोर्ट पर $800 का माल आया हुआ है जो क्लियर नहीं हो रहा। सिर्फ $872 की एक शिपमेंट है जिसको स्टेट बैंक ने 3 माह की परमिशन के बाद 84-85 में अलाउ किया था, और अलाउ करने के बाद कंपनी ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद यहाँ माल आ गए और आज तक कमर्शियल बैंक उसका नया नोटिफिकेशन आने के बाद उसको आज तक अप्रूव नहीं कर रहे हैं। शब्बीर मंशा का कहना है कि $9,000 का एक ऑर्डर 3 माह से पोर्ट पर खड़ा हुआ है जिस पर हर माह हजारों डॉलर का जुर्माना लग रहा है। यही सूरत हाल रही तो कारोबार और ताजिर खत्म हो जाएंगे। $9,756 की शिपमेंट है और उसको भी स्टेट बैंक रिलीज करने में उनकी यहाँ कमर्शियल बैंक्स की जो पॉलिसी आ रही है, जो रवैया हो रहा है, वो समझ से बालातर है कि अगर आप परमिशन दे देते हैं इंसान को 3-3 माह के इंतज़ार के बाद, और उसके बाद भी, और उसमें भी उन्होंने बैंक ने उनको फोर्स किया कि जी कि आप इसको DA करवा लीजिए। उन्होंने अपने सप्लायर से परमिशन के बाद DA भी करवा लिया और उस वक्त 120 दिन का और 180 दिन का उनका DA मौजूद है और उसके बावजूद उसको रिलीज़ ना करना वाकई बड़ी तशवीश की बात। सीनियर नायब सदर FPCCI का कहना है हुकूमत फौरी स्टेट बैंक के रवैये का नोटिस ले और ताजिरों के लिए फौरी रिलीफ के इकदाम किए जाएं। कैमरा में रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से